गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था व्हेन देयर आर मोर देन वन सेल्स इन ए सर्किट, हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किरचॉफ्स लॉ. Kirchhoff law basically used to find out the amount of current in the circuit or potential difference across any two ends of the circuit. We have used Ohm's law also for the same purpose. Ohm's law क्या था? V is equal to IR. So if we want to find V is equal to IR, I है हमारे पास, R हमें चाहिए, then IR, if we know the value of I, if we know the value of R, we can find V, or I is equal to V upon R. Knowing the value of V and R, we can find I. R is equal to V upon I. Knowing the value of V, knowing the value of I, we can find R. This we have already discussed how to find the potential, current, or resistance of any circuit. But when the circuit become complicated, हमने अपने सराउंडिंग में देखा है कि सिंगल वायर के सर्किट्स हमारे पास नहीं होते, सिंगल लूप के सर्किट्स नहीं होते. वी यूजुअली डील विद ए ग्रुप ऑफ लूप्स. बड़े कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं, एक ही जंक्शन से कई सारी वायर्स निकलती हैं, बहुत सारी वायर पे यहाँ पे आके मिला देते हैं हम लोग. Those type of circuit, if we use Ohm's law, it becomes very tedious or inconvenient. So Kirchhoff extended the Ohm's law for those complicated circuits. एक थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं. Let us say this is our first resistor, this is second resistor, this is one cell, this is another cell, this is another resistor. Say A, B, C, D, E, F. Say I1, say I2, E1, E2. Total say I3 current, I1, I2, I3 current. Now what is the total current I? Or what is I1? What is I2? What is total potential? We try to find out these values with the help of Ohm's law. It becomes very tedious or inconvenient. हम कैलकुलेशन करते रहेंगे और रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे. Kirchhoff extended the Ohm's law to give simplified rules to find the values of current and potential in such complicated circuit. And Kirchhoff's law is divided in two parts. उसने दो पार्ट्स में अपने लॉ को एक्सप्लेन किया. फर्स्ट वाज जंक्शन रूल और जंक्शन लॉ, सेकंड लूप रूल और लूप लॉ. किरचॉफ सेकंड लॉ और लूप रूल, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल और जंक्शन लॉ. बिफोर डिस्कसिंग दीज टू लॉज, we should know about some terms which we are going to use in these two laws. First one, we are going to use the network, electrical network. Electric network. क्या होता है इलेक्ट्रिक नेटवर्क? ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया था जिसमें बहुत सारे कंडक्टर्स लगे हुए थे. डायग्राम फिर से बता देता हूं, मुझे लग रहा है वो चलेगा हमारी मैक्सिमम डायग्राम्स के लिए. तो लेट्स ड्रॉ इट अगेन. तो ये बहुत सारे
रजिस्टर बहुत सारे रजिस्टर्स को किसी सर्किट में, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जैसा मर्जी सर्किट, सिंपल हो कॉम्प्लिकेटेड जैसा मर्जी नेटवर्क हो, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। द कलेक्शन ऑफ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ कंडक्टर्स in a circuit is known as electrical network. Then say junction. नेटवर्क तो पूरा हो गया, जंक्शन है, यहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर्स आके जुड़ते हैं। इट इज द पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर ज्वाइंड टुगेदर। यहां पे से R1 R2 R3, so R1 R2 R3, three resistors, three conductors having resistance R1 R2 and R3 are joined here, so this point is known as junction, or this point is also known as junction. So junction is what? Junction basically a joint where number of wires are connected with each other. Next, loop. लूप, देखो हमने जंक्शन रूल, लूप रूल, दैट मींस these points, these terms we are going to use again and again in Kirchhoff's law. Loop, a closed path comprising cell or resistors or conductors, we say. A closed path comprising of, made up of cells or resistors is known as loop. B, C, D, E, B is a loop. Loop close path होता है, यहां से शुरू करेंगे वहीं पे आगे खत्म होगा। Then A, B, E, F, A, A, C, D, F, A, these are all loops. Loops means closed path. We also call it mesh, M-E-S-H. Then fourth point, the fourth term, branch. Branch means side. This is the branch, this is the branch, this is the branch. Branch, a side from CD is a branch, AF is a branch, BE is a branch, AC. अगर इसमें रजिस्टर होता तो हम इसको भी ब्रांच की तरह ही कंसीडर करते। सो ब्रांच क्या होता है? A branch is any part of the network that lies between two junctions, दो junctions के बीच में, B2E, 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 दो junctions के बीच में जो भी पार्ट आएगा उसे हम कहेंगे ब्रांच. So these are the basic terms which we will use again and again in Kirchhoff law. So now let us start Kirchhoff law. It is divided in two parts. First one is junction rule. What is junction rule? Junction rule says that at the junction, total current, algebraic sum of all the current is 0. यहाँ पे इस पॉइंट पे जंक्शन पे, इस पे किसी जंक्शन पॉइंट पे the total sum of all the currents, like here I3 माइनस में है क्योंकि जा रहा है, प्लस I माइनस I3 प्लस I2 प्लस I1, क्योंकि I1 और I2 आ रहा है, I3 जा रहा है, is equal to 0. That means sum of all the currents is equal to 0. दूसरी लैंग्वेज में सेम स्टेटमेंट को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, I1 plus I2 is equal to I3. That means total current coming toward the junction or entering the junction is equal to the total current leaving the junction or going away from the junction. Coming toward the junction and going away from the junction. जितना भी करंट आ रहा है कितना जा रहा है, दोनों आपस में इक्वल होंगे. That is called junction rule or junction law. Kirchhoff's first law. इसे किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं.
Kirchhoff's current law, KCL. So what is current law? Junction rule. It says that the total coming current is always equal to total outgoing current from the junction. That means total algebraic sum of the currents on the junction is always 0. Coming to the second, loop rule. Loop rule acts in a closed path. And what is that? In a closed loop, the total change in potential, the average sum of the change in potential must be 0. पूरी लूप में डेल्टा V must be 0. टोटल चेंज इन पोटेंशियल मस्ट बी 0. और दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं, इन ए लूप total applied potential is equal to total potential drop. Total applied potential is equal to total potential drop. Applied potential means the total potential of the cells. इस लूप में बात करें, there is only E1 equal to टोटल ड्रॉप की बात करें I3R. टोटल पोटेंशियल इज अप्लाइड इज टोटल पोटेंशियल ड्रॉप. चेंज की बात करें तो E माइनस इज इक्वल टू 0. दैट मीन डेल्टा V इज इक्वल टू 0. सो किसी भी लूप में, क्लोज लूप में, द टोटल चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज 0. दैट मीन्स applied potential will always be equal to the potential drop across the loop, across all the resistors of a loop. Potential drop का मीनिंग क्या होता है? Potential drop होता है product of I and R, resistance और current. The product of resistance and current is called potential drop. अब लूप में करंट की डायरेक्शन है, ईएमएफ की डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेना है, कौन सा नेगेटिव लेना है. फॉर दैट वी हैव सर्टेन साइन कन्वेंशन. अब इसमें लूप रूल लगा के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम साइन कन्वेंशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ताकि वी कुड अप्लाई द साइन. पॉजिटिव और कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन आना है, कहां नेगेटिव साइन आना है, कौन सा पोटेंशियल पॉजिटिव काउंट होगा, कौन सा पोटेंशियल नेगेटिव काउंट होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन कन्वेंशन में द फर्स्ट थिंग इज हमें कोई एक डायरेक्शन चूज करना पड़ता है. कोई आपकी चॉइस है, इंडिविजुअल. फर्स्ट रूल क्या है, हमें कोई डायरेक्शन चूज करना पड़ता है ऑफ योर चॉइस. Maybe clockwise, maybe anti-clockwise. So first is choose any direction, maybe clockwise or anti-clockwise, as direction of traversal. ट्रेवर्सल में मेन डायरेक्शन किस तरफ को हमारा करंट जो है फ्लो करेगा, वो हमें एक अज्यूम करना पड़ता है. देन फ्रॉम दिस डायरेक्शन, लेट अस से आई चूज हियर clockwise. Let us say in this I have chosen a clockwise direction. Now first EMF is taken positive if the direction of traversal is from negative to positive terminal. If direction of traversal is from negative terminal to positive terminal,
सो अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इन दिस डायरेक्शन ट्रैवर्सल क्या है, जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किया है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, सो हमारा v क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाए तो v हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो थर्ड क्या है, EMF इज नेगेटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो ये हमारे EMF के लिए हो गई, दो डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे अगर जो हमारे पास सेल की में जो ट्रैवर्सल डायरेक्शन है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल शो हो रहा है, और नेगेटिव लेंगे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अब यहां देखें तो यहां डायरेक्शन क्या है, यहां हमने क्लॉकवाइज जिम किया हुआ, तो ये सेल में इस तरफ को है, तो फॉर दिस डायरेक्शन द EMF इज पॉजिटिव। अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम किया होता तो ये हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए हमें पहले अज्यूम करना है, देन वी हैव टू चेक द डायरेक्शंस ऑफ ईच, साइन ऑफ ईच अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन अज्यूम्ड। अब ऐसा नहीं है कि आप एक सर्किट में एक लूप में आप क्लॉकवाइज ले लें, दूसरी में एंटी क्लॉकवाइज ले लें, आपको अब सिमेट्री रखनी है। आपने एक बार जो चूज कर लिया आप उसी पे अपने आप को स्टिक कर लीजिए और फिर सिमेट्री रखते हुए हर लूप में अप्लाई करते जाएं। This was about EMF. Now about drop, potential drop, product of V and I. Sorry, product of R and I. Potential drop. Fourth point, V is equal to IR जो है potential drop. ये पॉजिटिव होगा अगर जो डायरेक्शन में assume की है और जो करंट की डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन अज्यूम की है और जो करंट की डायरेक्शन है, दे आर इन सेम डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल, देन दिस V is equal to IR is positive, and fifth IR is negative if the direction is opposite to the डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सल। जो हमने अज्यूम किया हुआ है स्टार्टिंग में डायरेक्शन, अगर हमारा करंट उसके ऑपोजिट में फ्लो कर रहा है, देन दिस IR that will be negative. So these are the some sign conventions. So let's apply this sign convention and find out the conditions in the loop. So in the first loop, say in loop B, C, D, E and B, what is E1? Now from negative to positive, positive is equal to I3, और इसको R3 बोल देते हैं, I3 R3. Junction rule says that I3 is equal to I1 plus I2, so E1 is equal to I1 plus I2 R3. In loop A, B, E, F, A, B, E, F and A, again clockwise direction assume कर लेता हूं मैं एक। Now see, in this direction E2 प्लस का हो गया because negative positive, और यहां पे क्योंकि clockwise का मतलब ऐसे चल रहा है, तो इधर क्या हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, that means E1 is negative. See, E12 is positive and E1 is negative. Now what current? I2. I2 is in the direction of traverse. That means I2 is positive. So I2 R2. Then here R1, I1 and direction of traverse opposite to each other. Therefore minus I1 R1. This is for the second loop. Hence from the loop 1 and loop 2 हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं I1 I2। जितने हमारे पास वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन हमें चाहिए होती है टू सॉल्व द इक्वेशन एंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। ऐसे एक एग्जांपल देख लेते हैं।
क्योंकि एग्जाम्पल से लूप रूल ज्यादा बढ़िया एक्सप्लेन होते हैं। और एग्जाम्पल जो है ये बोर्ड के पेपर में आ भी चुकी है, जो एग्जाम्पल अभी डिस्कस करने वाले हैं। Find the potential difference across each cell and rate of energy dissipated in R in the circuit। कैसा सर्किट है? सर्किट है, here is one cell, one resistor, here is a resistor, and again cell and resistor. This resistor is a 4 ohm, this 1 ohm, this resistor 2 ohm, this 12 volt EMF, and here 6 volt EMF. So we have to find out the potential drop across potential across each cell, potential difference V। हमें V फाइंड करना है, E गिवन है, V फाइंड करना है। तो पहली चीज तो V is equal to E minus I R का रिलेशन भी लगा सकते हैं, for that we need I। ठीक है। सेकंड, अगर R के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना, क्योंकि पैरेलल है तो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसका होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा। तो क्वेश्चन इज फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, एंड सेकंड पावर डिसिपेटेड अक्रॉस R, पावर डिसिपेटेड across R। तो for that first we have to find out the current। तो let us say इधर I1 कह देते हैं और इधर I2 कह देते हैं। I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, और इधर बन गया दोनों I1 प्लस I2। जंक्शन रूल कहता है I1 प्लस I2 आ रहा है तो I1 प्लस I2 जा रहा है, दोनों का सम के करंट जाएगा। सो दैट ओवरऑल टोटल सम ऑफ द करंट हियर इज 0। Now apply the loop rule in the first loop। clockwise direction बना दिया, so here पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, तो -12 इज इक्वल टू करंट की डायरेक्शन, तो 2 इंटू I1 ऑपोजिट टू ट्रांसवर्स -2 इंटू I1, और ये भी -I1 प्लस I2 इंटू 4, दिस I1 प्लस I2 इंटू 4, ये भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स के ट्रेवर्स के ऑपोजिट जा रहा है। माइनस कॉमन ले लो तो 12 इज इक्वल टू 2I1 प्लस I1 4 प्लस 4I2, दैट मींस 12 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 4 6I1 प्लस 4I2, 2 से डिवाइड कर दिया, 6 इज इक्वल टू 3I1 प्लस 2I2। ये एक इक्वेशन हो गई। नाउ सेम अप्लाई दिस इक्वेशन, डायरेक्शन ट्रेवर्स बना दिया पहले। नाउ डायरेक्शन सेज दैट नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 6 प्लस का हो गया हमारे पास, इज इक्वल टू, अगेन करंट किस तरफ जा रहा है, इस तरफ को करंट जा रहा है, और ये डायरेक्शन ट्रेवर्स की है, तो दिस 1 इंटू 2I2 प्लस का हो गया, अगेन I1 प्लस I2 इधर जा रहा है और डायरेक्शन ट्रेवर्स भी इधर को ही है, तो ये हमारे पास होगा प्लस I1 प्लस I2 इंटू 4, so 6 इज इक्वल टू 4I1 प्लस 4 प्लस 1 5I2। Solving 1 and 2, let's try to solve 1 and 2। तो मैं इनको एक बार फिर से लिख लेता हूँ। 6, एक काम करते हैं, इनको सॉल्व करने के फॉर्म में लिखते हैं। तो सेम बनाना है, we have to make it a similar, multiply it with 4 and this equation by 3, तो हमारा I1 इक्वल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सब्ट्रैक्टिंग, तो व्हाट वी हैव गॉट, 6 4 जा 12I1 8I2, here 18
12I1 15I2 subtracting 6 minus 7 I2, then I2 is equal to minus 6 by 7 ampere. We got the I2. Substitute value of I2 in any equation 1 or 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 is equal to 3I1 plus 2 into minus 6 by 7. 6 is equal to 3I1 minus 12 by 7. 6 plus 12 by 7 is equal to 3I1. This is the mathematics. You can do it by yourself also. 7 LCM 42 plus 12 is equal to 3I1 and it becomes and here I1 is equal to 313 and 3 8 are 24. 18 by 7. So we got I1 and I2. Now come to the main part. I1 I2 आ चुका है हमारे पास. अब हम फाइंड करना है नंबर 1 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ई सेल. तो ई सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना आर के क्रॉस होगा. तो आर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो. V इज इक्वल टू आई आर. आई कितना है यहाँ पे? I1 plus I2. R कितना है? 4. That means 18 by 7 minus 6 by 7. ये हो गया 12 by 7. 48 by 7 volts. This is the potential across each cell. चाहो तो इंडिविजुअल पे फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? V is equal to E minus I R. तो V कितना है हमारे पास? 12 माइनस I कितना है? I1 18 by 7 इंटू R कितना है? 2. तो इसको सॉल्व करेंगे. दिस विल अगेन बिकम इक्वल टू 48 by 7. सॉल्व करके देख लीजिएगा. ये 48 by 7 आ जाएगा. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट पावर डिसिपेटेड क्रॉस R. तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R. That means I1 plus I2 square R. That means 18 by 7 minus 6 by 7 whole square by R. That means 12 by 7 whole square by R into 4. That means 144 into 4 by 49. Sorry. 576 by 49 joule per second. That is the power dissipated. So this is the way we can use the Kirchhoff rule for finding the different values of I1, I2 or values of the current, potential, etc. And it is very important topic, and you will surely find any at least one question in your competitive exam or in board exam also.